Good evening, everyone. We welcome you for today's Friday forum, and I request Amruta to proceed for the introduction of the speaker. Amruta, ma'am, please. Yeah. Good evening to one and all present here. Today we have with us Maninder sir, and it's a great pleasure for me to introduce Maninder sir. Maninder sir is originally from Jabalpur, MP. His childhood was a struggle, but the fruit of those tough days is visible in his career graph. He did his post-graduation in chemistry with meritorious distinction from Rani Durgavati University, Jabalpur. He is in the field of pharmaceuticals and chemicals. His dedicated working has made what he is now. He is also a life member of All India Management Association and is also a member of Lions Clubs International, the world-renowned non-government organization. At present, he is district GMT coordinator and is very much involved in social activities in Indore. Also a member of the Gurudwara Prabandhak Committee. He believes that if God has given you something, then it must be shared with others. He has focused on his strengths, that the leadership and motivated to carry the message that how one can achieve goal despite adverse environment. He has successfully completed almost all the courses of Lions International, which are focused on building leaders and achievers. He resides in Indore, the cleanest city of the India, 5th time in a row. He is looking forward to associate himself with all those who wish to achieve their goals and lead successful lives. The motto, Maninder sir firmly believes that every individual can do everything, and that should be the slogan of one's life. His motto is that to achieve the success, one must reveal himself to his own self. According to him, 95% of the people are a victim of failures because of not finding the right direction. He wants to show them the path so that one can walk onto it. To make their journey of life rewarding, successful, and fulfillment. He aspires to empower people to lead a happy life. His desire is to become a one-stop solution to inspire human beings to achieve their goals, leaving behind their worries. He is also an author, poet, motivational speaker, trainer, and a life coach appreciation. I welcome you, sir, on behalf of ISTD Anand chapter, and now I hand over the platform to Maninder, sir. Thank you very much. Thank you very much for my wonderful introduction, what you have given, and the tone and the way you have presented me is really touched to my heart. I pay my respect to all seniors and all officials of ISTD Anand. I may not, I think that I don't know the names of each and everybody. Only I know Joseph, to whom I was interacting since last so many days. And because of him, I am in this on this platform. And sir, who is your chairman? Sir, Yagnesh Dalwadi sir is chairman for ISTD Anand chapter. He is there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My respect to him. My respect to him. Yeah, sir. अच्छा हाँ योगी दलवाई साहब. My respect to you. Yeah, नमस्कार. मैं बहुत आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पर चांस दिया है और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज. मैंने बात कर लिया था, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा जिससे कि हमको समझ में आए, क्योंकि जो टाइम हम यहाँ पर स्पेंड करने जा रहे हैं ये टाइम बहुत कीमती है और पैसा वापस आ सकता है, हर चीज वापस आ सकती है, पर टाइम कभी वापस नहीं आता. और टाइम सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी के बेटे हों और चाहे हम लोग हों, टाइम सबके लिए एक जैसा है. तो उसकी कद्र करते हुए मैंने ये जो नया टॉपिक, मेरे को बहुत सारे फोन भी आए, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि आपने ये नया टॉपिक कहाँ से लेकर आए, आर्ट ऑफ फिक्सिंग डेडलाइन, ये कहाँ से लाए टॉपिक. मैंने कहा ये टॉपिक आज का डिमांड है, आज की ये डिमांड है ये, क्योंकि हम क्या है, चालू तो करना जानते हैं पर उसको कहाँ ब्रेक देना है, कहाँ खत्म करना है, कहाँ उसको पॉज देना है, कहाँ उसको कॉमा लगाना है, कहाँ उसको फुल स्टॉप लगाना है,
ये भूल जाते हैं, और इस कारण हमारा समय वेस्ट होता है, हमारा पैसा वेस्ट होता है, और हम डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक आपके सामने सोचा डिस्कस करूं, द आर्ट ऑफ फिक्सिंग डेडलाइन। क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग करूं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. If you have given me command, then I am sharing my screen. So you can do anything. Yes, sir. Screen is visible? Yes, sir. Good one. Yes, sir. So this is the topic, the art of fixing deadline. कहीं भी कोई बात होती है तो आप मुझे बताइएगा, आई विल बी डेफिनेटली इन कॉन्टैक्ट विथ यू। आगे बढ़ते हैं कि मेरे बारे में जैसे आपको बताया अभी, मैं ऑथर, पोएट, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड लाइफ अप्रिशिएशन कोच। अमृता मैडम इसको लाइफ कोच अप्रिशिएशन शायद उन्होंने बोला। एनीवे, मैं इसको एलेबोरेट करना चाहता हूं कि व्हाट इज लाइफ अप्रिशिएशन कोच। ये एक नया वर्ड है, मैं थोड़ा सा नई नई चीजें इजाद करता रहता हूं। व्हाट इज लाइफ अप्रिशिएशन? दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम लोग कई बार अपने आप को बहुत कर्ज करते हैं, हम अपनी केयर नहीं करते, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारी वेल्थ हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, हमारा सोशल ऑब्लिगेशंस हो, हमारा परिवार हो। हम सिर्फ अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, हम सिर्फ जिंदगी को जीते हैं। मैंने ये देखा है कि जब मेरी एज पर लोग पहुंचते हैं, जैसे मैं अभी 60 पर टच कर रहा हूं, तो एक रिग्रेट मन में रहता है कि मैं अपनी लाइफ को जी नहीं पाया। क्योंकि 40 से 60 का जो एरिया रहता है, मेरे ख्याल से सर सबको म्यूट कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो जो 40 से 60 का जो बीच का टाइम रहता है ना, 40 टू लेके 60 इयर्स का, ये एक्चुअली इंसान को बहुत ही एंजॉय करने वाला टाइम है। मगर होता क्या है कि हम इसमें जिंदगी की ऊहा-पोह में लगे रहते हैं और जिंदगी को प्रॉपर जी नहीं सकते हैं, जी नहीं पाते हैं। तो मैं लाइफ एप्रिशिएशन कोच हूं, मैं लाइफ को एप्रिशिएट करना सिखाता हूं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरा 3 दिन का इसमें पूरा एक कोर्स चलता है, जो मैं कभी आपसे मिलूंगा, कभी फिजिकली हम लोग इस कोर्स को करेंगे या ऑन जूम पे भी करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड थिंग, मैं एक हेल्थ पे काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा नारा है सबसे पहले सेहत। यदि हमारी हेल्थ नहीं है, यदि हमारा स्वास्थ्य नहीं है, इफ वी आर नॉट केयरिंग अवर हेल्थ, देन एवरीथिंग इज ऑन डोल्ड्रम्स एंड वी कैनॉट गेट व्हाटएवर वी वांट टू गेट। तो हेल्थ में मैं बहुत काम कर रहा हूं। मेरा एक स्पेशल एरिया है, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज में मैं बहुत काम कर रहा हूं। और सेकेंड थिंग, मैं हर बार अपने लेक्चर के बाद में हाथ धोने की विधि बताता हूं, हाउ टू वॉश योर हैंड्स, बिकॉज कोविड हैज गिवन अस अ वेरी बिग लेसन दैट हाउ टू बी हाइजीनिक इन ऑल स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ। तो ये मैं आपको बताता हूं। मैं करीब आई हैव ऑलरेडी रीच्ड अबाउट 7 to 8 lakh people right now, and my target is of 1 crore people reaching. So that I will also show you. The ultimate inspiration is the deadline. Matlab, whatever inspiration I have, because today I have kept a deadline that I should reach to that maximum optimum level today of my lecture, so that I can enjoy today's evening. The ultimate inspiration is a deadline, unless you fix deadline. That's why I just asked you that how much time you had given to me. You have told me around 1 hour. So I am very much cautious now that 1 hour, I have already started at 6:10. By 7:10, I have to complete. And I am very cautious about time because I respect your time also. So my inspiration that up to 7:10, how I can show you that what is deadline and how to use it wisely. Today is what we are going to study today. What we are going to cover. What is deadline? First, we will examine that what is deadline. Second, why it is important to fix deadline. Third,
what makes an excellent deadline. 4, how to manage time to improve the importance of deadline. Then, how deadline enhances our creativity. So these are the 5 points which I am going to discuss. Be with me, and I think give me 100% of yours so that you can understand this is a very, very important topic in one's life. Today we are very busy. Everybody is engaged somewhere, and now the time says that you should be smarter than hard worker. Once again, I'll ask you. Once again, I'll repeat. What is deadline? We are going to study this. Why it is important to fix deadline? What makes an excellent deadline? How to manage time to improve importance of deadline, and how deadline enhances our creativity. So let us move ahead. What is deadline? I'll ask you to put in a chat box. What is deadline? आप क्या समझते हैं कि deadline क्या किसको बोलते हैं? मैंने तो यहाँ लिखा है a date or a time when something must be finished. The end goal, the fruit. It's a broad definition. It's a broad explanation. But what do you say? Can you put in the chat box, please? It should be an interactive session. I don't want to be a preacher. I want that I should exchange my views with you so that we both can be benefited. So can you put in the chat box, please, that what is deadline? Yes, anybody? Chat box, please. Anybody can put in the chat box. What is deadline? Or should I, otherwise I go ahead otherwise. I understand that everybody must be knowing this. Deadline की बात हम करने जा रहे हैं, पर एक चीज है जिसमें हम डेडलाइन फिक्स नहीं कर सकते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज है? क्योंकि डेडलाइन से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं. हम डेडलाइन की बात करेंगे, हम हर चीज में डेडलाइन की बात करते हैं, बट एक चीज में हम डेडलाइन नहीं डिसाइड कर सकते हैं. जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स इफ पॉसिबल, and somebody can read it. If messages are coming in chat box, somebody can read it, because I am not able to identify here that where is the chat box, because it is in full screen. My presentation, my PowerPoint presentation is in full screen, so I am not able to, Sorry, we cannot fix up deadline for that. My God, clap for him, yes. It's a I big had just applause, read out, big applause. I had just read out on behalf of you, Kinjal Ahi members. Thank you. Because you cannot fix the deadline of your death. You don't know till when we are living here. किसी को नहीं मालूम है. एक यंग व्यक्ति जो कि सब अच्छा काम करता है, अच्छा खाता पीता है, सुबह शाम एक्सरसाइज करता है, अच्छे लोगों से मिलता जुलता है, और वो अचानक डेथ उसकी हो जाती है. और ऐसे लोग जो कि आज 10-10 साल से पड़े हुए बिस्तर पे, उनको कुछ नहीं हो रहा. तो वी कैनॉट फिक्स द डेडलाइन ऑफ आवर डेथ. अदरवाइज इन लाइफ के सब स्फीयर में आप डेडलाइन को डिसाइड कर सकते हैं. सर, किसने बोला था ये? जस्ट गिव योर नेम प्लीज. Kinjal madam. Sorry. Kinjal madam. Okay, very good, very good. I'm Kinjal madam. fortunate to attend your session second time. So nice. It was an honor to listen to you the previous time as well. In fact, let me tell you that your happy birthday to you song along with washing My hands God. has already reached your target of maybe 1 crore people, because we also are spreading the same message. Thank you Thank very you much. Thank you. for doing Salute all to the you. honor. Salute to you. You have It's an endorsed honor my. to be in your session, sir. You have endorsed my efforts. I'm thankful to you. You are a messenger of God, because We what are I'm doing. thankful for your time and effort. Thank you. Because whatever I'm doing for the benefit of the general public, my brothers, my sisters, and for our country. And if you have caught this message last time, I'm very much thankful. To salute to the ITDC, salute to the Institute of this one, Training and Development. Thank you very much. So हम डेडलाइन अपने डेथ की फिक्स नहीं कर सकते हैं, पर हर चीज की डेडलाइन हम फिक्स कर सकते हैं. सेटिंग डेडलाइंस एंड फॉलोइंग थ्रू टू कंप्लीट देम इज एन आर्ट.
mind it. It's an art that you can learn with practice and patience. Practice और patience जो है, ये जिंदगी के दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. मुझे बहुत खुशी है कि आपने पिछली बार जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें से एक चीज उठाई. मेरे लिए यदि एक व्यक्ति भी चेंज होता है तो मेरे लिए जिंदगी सफल है. आई डोंट वांट टू चेंज एंटायर वर्ल्ड. एक छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी कि एक समंदर बार बार मछलियों को बाहर फेंक रहा था. हाई टाइड्स वर देयर, द फिश वर कमिंग आउट ऑन द शोर. एक लड़की थी, छोटी सी, वहां देख रही थी. वो देख रही थी और वो समंदर से बोल रही थी कि समंदर तुम क्या कर रहे हो, ये मछलियों को तुम अंदर से बाहर फेंक रहे हो, मछलियां मर जाएंगी, ये कहां जाएंगी. वो सोच रही थी मैं क्या करूं. फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं एक मछली को उठाकर अंदर फेंकती हूं. जब उसने उठा के अंदर फेंकना शुरू किया तो एक इंटेलिजेंट आदमी वहां से निकला. उसने पूछा तुम क्या कर रही हो. उसने कहा मैं इस दुनिया को बचा रही हूं. उसने कहा तुम दुनिया को बचा रही हो. किसको बचा रही हो. बोले ये मछलियां सब मर जाएंगी, मैं इनको बचा रही हूं. तो उसने कहा तुम्हारे इससे क्या होगा, एक मछली तुम फेंक रही हो. उसने कहा यदि मैं एक मछली भी फेंक रही हूं ना तो वो मछली बच रही है. मेरे एक मछली से भी, मेरे एक एफर्ट से भी एक मछली बच जाएगी ना तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी. यही बात मेरी है. मैं पूरी दुनिया को चेंज करने नहीं निकला, पर यदि एक व्यक्ति भी खाना खाने के पहले अपने हाथ धो लेगा, कोरोना से बच जाएगा, अपने अंदर गंदगी नहीं ले जाएगा, कॉशियस हो जाएगा, तो मैं सफल हो जाऊंगा. तो दिस यू कैन अर्न. कोई भी चीज हो वो एक आर्ट है जो आप प्रैक्टिस एंड पेशेंस से लर्न कर सकते हैं. Why it is important to fix deadline? Now हमारा अब यहां से टेक्स्ट शुरू होता है. क्यों डेडलाइन को फिक्स करना चाहिए, Why it is important? ये बात आज हमारा मेन जो मोटो है आज यहां बात करने का वो यही है कि हम क्यों डेडलाइन फिक्स करें. अरे पूरी दुनिया हमारी है, पूरा समय हमारा है, कौन हमें क्वेश्चन करने आएगा. Who dare to tell us that how you are spending your time? I am a owner of my own time. Why you are asking a question this? Why it is important to fix deadline? एक एड्रीना ट्रिगियानी है. She is a very well-known author of US. She has written that there is nothing an artist needs even more than excellent tools and stamina that a deadline. What a sentence she has written. कि एक artist, even he doesn't require that excellence, he doesn't require much stamina, but he requires deadline. जब तक डेडलाइन आपके पीछे नहीं रहेगी. मैं आपको आज बड़े अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा. मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में मैं जो भी बोलूंगा मैंने अपने ऊपर पहले टेस्ट किया है. I have already taken on me. I have tested on myself. Then because I am not a preacher. I am not a bookish preacher कि मैं बुक से पढ़ाऊंगा और आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता रहूंगा, आपसे हेल्थ की बात करूंगा और मेरे हेल्थ की पता नहीं है, आपसे मैं डेडलाइन की बात करूंगा और मेरी अपनी डेडलाइन पता नहीं है कि मेरे को कितने बजे आना था, मुझे क्या करना था. नो, नथिंग लाइक दैट. मुझे वही बताना है आपको जो मैं अपने ऊपर करता हूं. अदरवाइज मुझसे बड़ा झूठा इस दुनिया में और कोई नहीं होगा. मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं बिकॉज दिस 1 hour इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो देयर इज नथिंग एन आर्टिस्ट नीड्स even more than excellent tools and stamina that a deadline. डेडलाइन वो चीज है जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी की हर वॉक में, everywhere, whether it is in family or it is in your organization or your workplace or with the dealing of your relatives, deadline is required. That how you can utilize this deadline. Now, मैंने अभी आपसे पूछा कि why deadline is required. Anybody can answer it, no problem. If chat box is not there, you can unmute yourself and answer because I have had a very nice interaction with Kinzal. So you can answer it. That what is? I have written here, creating deadline helps to produce better work. Is it okay? Hi, audience. Hi, audience. Is it okay?
creating Yes, sir. yes, be very careful creating that, because I don't want that आप सिर्फ सुने, आप मेरे साथ बात करें, because you have a facility to unmute yourself and tell me. So creating deadline helps to produce better work. Having a deadline is useful because it encourages you to produce. मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल दूंगा अभी, बिल्कुल लाइव एग्जांपल. Important for almost any task and any role. Everywhere it is important. Essential for the smooth running of organization. Maybe your family, maybe your own self, maybe your vehicle, maybe your anything, maybe the country, maybe the society. Everywhere it is essential for the smooth running of organization. See, you have fixed deadline that every Friday at 6 p.m. the different motivational speakers or speakers will speak on this. You have kept a timing 6 to 7 o'clock or 6 to 7:30. This deadline you have fixed, and before that you prepare everything. So deadline is required to nurture the organization in a different manner. Why deadline matters? To ensure that we complete our work. Until unless यदि मुझे नहीं मालूम होगा कि मुझे 6 बजे बोलना है, तो मैं कैसे काम करूंगा? यदि आपको नहीं मालूम है कि ये 6 बजे से यहाँ पर सेशन शुरू होगा, then how you can come on this platform and utilize this to encourage a smooth flow of work? Because I was knowing that I am required here at 5:50. I had given a message to Joseph that I am coming at 5:30 so that we can test our this one. But he said, no, you may join at 5:50 only because we are all seasoned people and we are not new. So he has given me deadline of 5:50. I was somewhere other place. So from there I rushed and not rushed, but I came comfortably because I was knowing that I have to reach, I have to start my presentation at 5:50. So I had, because I will elaborate this in my further talk, that how I came on this. To set expectations. This why the deadline matters. To set expectations, to relieve you at the set time frame. Because of this deadline, you may know, or you can give the appointment to somebody else that 7:30 you are free. Like I have to organize one meeting today in our Lions Club. There is a district governor visit in our club. We have a district governor in our district, and the governor visits to club to examine and to inspect that how we are working. So today is a district governor visit at 8 o'clock in our club. So I have to be present there. So that's why I have fixed my deadline here. And to save time and money. Time and money. Time is a precious. You can only save it. You cannot again regenerate it. But money you can save also, and money saved is money earned. You can save money also, but time you cannot earn back. Time, whatever has gone, has gone. So it's easy to delay or to forget a task that has no agreed end point. You cannot remember it. I'll share one small example with you, a live example. My daughter, Ishpreet Kaur, she is an international manifestation coach. She is ahead. She is way ahead from me. She have a different clients from all over the world. She has studied in France, China, London, and for her studies, I took a loan of around 30 lakh rupees from the bank. In the last COVID, April 2020, she lost her job. I was very much worried. I said, what is to be done? COVID चल रहा है, सब तरफ बंद है, जॉब चला गया, 30 लाख रुपीस का पेमेंट करना है, क्या करूंगा मैं? And I am a father, so I have to do it. That time she said me, कि Papa, give me some space in my life. Don't dictate me. Don't depress. मुझे टाइम दो, मुझे मौका दो, मैं आपके सारे सपने को पूरा करूंगी. I was afraid. I said not possible. बातें करने में
और काम करके दिखाने में बहुत अंतर होता है। पर मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ करो। तो शी स्टार्टेड डूइंग। लोन वॉज एज इट इज। ये पूरा साल 2020 का निकल गया। देन माई एल्डेस्ट डॉटर इज इन स्टेट्स। जनवरी में आई आस्क्ड हर टू गो टू योर एल्डर सिस्टर। बोली कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ। हम लोगों को लग रहा था कि ये जाएगी, एक आध महीना वहां रुकेगी, देन दे विल फाइट विद ईच अदर एंड शी विल रिटर्न बैक। बट शी वाज वेरी सीरियस अबाउट हर वर्क। वो गई और फरवरी में गई वो, और अगस्त में वापस आई, बिकॉज देयर इज अ बैरियर ऑफ, देयर इज अ कंपल्शन टू कम बैक आफ्टर 6 months. But the way she developed herself, it's really saluting. From April, she started paying her loan. और मैं, you will astonished to learn that she fixed the deadline. She fixed the deadline कि by 31st of December, I will repay my complete loan. And मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर the power of deadline. She was after the deadline कि आज उसका लोन, आज भी हमने पेमेंट किया, आज उसका लोन ओनली 1,12,000 बचा है, जो कि वो 27th of this month is going to pay. तो जब वो डेडलाइन के पीछे पड़ी, जब वो उसके पीछे लगी, तब जाके वो उसको पूरा कर पाई, बिकॉज शी हैड वन मोटो, शी हैड वन गोल. दिस इज द लाइव एग्जांपल which I wanted to give you. I have complete papers with me. Anybody, because we are having a classes here also. तो हम उस पर ये बात डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं, भगवान राम क्या कह गए थे, गुरु नानक क्या कह गए थे, ईसा मसीह क्या कह गए थे, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम रीडिंग द बुक्स. आई रिस्पेक्ट देम. जो भी उन्होंने कहा, आई रिस्पेक्ट देम. बट आई रिस्पेक्ट दोज पीपल्स मच, दोज आर अमंग अस, जो हमारे आसपास हैं. मैं उनको देखता हूं, उनसे सीखता हूं. Deadline help us to collaborate toward achieving a shared goal and to keep complex multi-stage projects on track. एक दूसरे के साथ जब हम मिलकर काम करते हैं, because man cannot work alone. We are in the society. We can together we can achieve lot of things. Single आदमी का उतना important नहीं है जितना we can work together. So by achieving the goal due to deadlines is a rampant important thing. Deadline make clear what we are expected to do. Yes, sir. It will disconnect. Yes, sir. One minute. So managing a deadline, we were talking. Deadlines make clear what we are expected to deliver and when. This means that we can take control of our work free of confusion. This is also a very important point. Until unless you fix deadline, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको पता ही नहीं है. जैसे सूखा पत्ता होता है ना, सूखा पत्ता, हवा जहां चलती है सूखा पत्ता वहां चला जाता है. तो ऐसे ही हमको पता भी नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं. तो deadlines make clear what we are expected to deliver and when. This means that we can take control of our work free of confusion. I think mute everybody, sir. What makes an excellent deadline? Now this is the topic. What makes an excellent deadline? अभी तक तो हमने देख लिया कि deadline क्यों होनी चाहिए, deadline क्या क्यों रखना चाहिए, why it is important. मैंने आपसे पूछा था कि deadline किस चीज में नहीं कर सकते हैं, तो आपने मुझे आंसर दिया कि हम अपनी डेथ में डेडलाइन नहीं डिसाइड कर सकते. दैट इज ओके, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड. बट नाउ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं दैट व्हाट मेक्स एन एक्सीलेंट डेडलाइन. सबसे पहले डेडलाइन को फिक्स करने के लिए यू हैव टू इवैल्यूएट योर रिक्वायरमेंट. देखिए अभी अपनी बात हो रही थी, अभी 40 मिनट्स में अपना ये जूम का सेशन अचानक बंद हुआ, फिर वापस चालू हुआ, फिर 40 मिनट्स हमको मिलेंगे, और हमने अपनी डेडलाइन फिक्स कर ली
कि भाई मुझे 7 बजे तक बोलना है, जिससे कि हम डबल बार इसको नहीं आ पाए, तो कुछ क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे. तो आई हैव टू evaluate my requirement to fix up the deadline. So my requirement is that I have this much of time. Identify the right resources. किसी भी डेडलाइन को फिक्स करने के लिए you have to identify the resources. What resources you have? How much manpower you have, how much money you have, how much tools you have, how much days you have, how much time you have. Everything you have to take in consideration before fixing any deadline. हम अदरवाइज किसी को भी बोल देते हैं कि अरे आप चिंता मत करो, मैं 2 दिन में कर दूंगा, मैं 3 दिन में कर दूंगा. नो. क्यों? क्योंकि आप झूठे पड़ जाएंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी. एंड इफ यू लूज योर क्रेडिबिलिटी, you will lose the status in the society. So maintain your credibility. किसी भी चीज को करने के पहले, किसी भी चीज के लिए हाँ करने के पहले, you have to find out the ways, you have to find out the tools, you have to find out the resources, how you will achieve it. Account the challenges. Challenges को भी आपको account करना है. ये जो छोटा सा चैलेंज था ये वाला कि अभी अपना मोबाइल ये वाला बंद हो जाएगा, जूम, ये आपने अकाउंट किया, आपने मुझे पहले ही बोला, नहीं, नो प्रॉब्लम, वी हैव ऑलरेडी अकाउंटेड इट. तो अकाउंट योर चैलेंजेस. कुछ भी हो सकता है. अभी जैसे मैंने आपके सामने बोल रहा हूं, मैं अभी हो सकता है यहाँ पर लाइट चली जाए. ऐसा हुआ, आई वाज सपोज टू स्पीक इन पाकिस्तान, ऑन जूम कॉल पे था मैं, हमारे लायंस का एक बहुत बड़ा सेमिनार था, और उस दिन हमारे यहाँ पावर चला गया. सी व्हाट वाज द plight ऑफ माइंड. पाकिस्तान, I was around 300 people were connected there and light was gone. पहली बात तो मैं बिल्कुल डर गया कि क्या करूंगा. बट देन आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम, मैं क्या कर सकता हूं इसमें. मैंने अपनी मोबाइल की लाइट ऑन की. अब मजे की बात ये हो गई कि चूंकि लाइट चली गई तो वाईफाई चला गया. फिर मैंने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, मोबाइल का मैंने ये टॉर्च जलाया और उसको अपने मुंह पे करके, और मैंने 15-20 मिनट प्रेजेंटेशन दिया, और इतने में फिर लाइट आ गई. तो यू हैव टू अकाउंट द चैलेंजेस. चैलेंजेस आपके बीच में आएंगे, आपकी डेडलाइन को डिस्टर्ब करेंगे. अब उस वक्त क्या हो सकता था, मेरे पास पाकिस्तान वालों ने बोला कि सर यदि आप कोई गड़बड़ी है तो वी कैन पोस्टपोन इट फॉर 15 मिनट्स 20 मिनट्स. मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली यू, बिकॉज आई शुड बी ऑडिबल. इससे ज्यादा कि मैं आपको दिखूं, उससे ज्यादा आप मेरे को अच्छा सुन पाओ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. प्लानिंग पेस. until unless you plan. अब मैंने सब प्लान किया हुआ है, मेरे पास हॉटस्पॉट भी है, मेरे पास टॉर्च भी है, मेरे पास और भी सिस्टम्स हैं, मैंने पूरा प्लान किया हुआ है. until unless you plan, you cannot overcome with the challenges of making deadline. डैमेज कंट्रोल. कुछ हो सकता है जो बीच में आपको डेट्रीमेंटल हो, कोई आपको डैमेज करने की कोशिश करे, कोई चीज गड़बड़ हो जाए, कोई चीज आप मान लीजिए आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और वो बीच में गड़बड़ हो जाए. मान लीजिए आपने पूरा एक लेटर लिखा और ऐसा कोई कमांड दब गई कि वो डिलीट हो गया. सो हाउ देन यू विल फेस दैट चैलेंज. सो दीज ऑल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन कंसिडरेशन. एंड फॉर ऑल दिस I always say that you have to manage yourself. How to manage yourself? Meeting deadline is ensured by that you should be disciplined, you should be well prepared, and you should be well organized. It is very, very important that you should know how to manage yourself. हम दुनिया को चेंज करना चाहते हैं. हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम पूरी दुनिया को चेंज करना चाहते हैं पर हम चेंज नहीं होना चाहते. आज मैं इंदौर जैसे सिटी में हूं. इंदौर आज 5th टाइम, इट इज द 5th टाइम इन अ रो द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, एंड आई मीन इट. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि इंदौर को ये तमगा मिला है, यदि ये इंदौर को अलंकरण मिला है, यदि ये इंदौर को डिस्टिंग्विश चीज मिली है, तो वी मीन इट. हम लोग जो कि यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, हम यदि मान लीजिए कार से जा रहे हैं और हमारे आगे वाली कार से कचरा गिरा, तो आई एंश्योर दैट आई स्टॉप माय कार. मैं वो कचरा उठाता हूं और उस कार वाले को देता हूं कि ये आपने फेंका है कचरा, ये अपने कार में रखिए. और हम लोग एक दूसरे से डरते हैं. हम लोग जो पहले कोई भी बच्चे कचरा फेंक देते थे, कोई भी बच्चे प्रॉब्लम करते थे, हम सब उससे ओवरकम हो चुके हैं. अभी उस दिन क्या हुआ, आई वॉज पासिंग बाय वन रोड, मेरे आगे एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बस जा रही थी. तो वो बस तेजी से जा रही थी, उसमें से किसी बच्चे ने वेफर्स के पैकेट फेंके बाहर, वेफर्स खा के पैकेट फेंके, केले का छिलका फेंका. आई वाज
रियली आई वाज डिस्टर्ब। मैंने फट से अपनी गाड़ी रोकी, वो उठाया और उस बस का पीछा किया। वो बस आगे जाके सिग्नल पर रुकी। मैंने अपनी गाड़ी उस बस के सामने लगाई और मैंने गाड़ी खड़ी करके और उस बस वाले को बोला कि दिस इज हैपेंड। अब चूंकि वो बाहर से आए थे तो मैंने मगर वहां पर बस के अंदर चढ़ के एक लेक्चर दिया कि ये इंदौर है, क्योंकि वो बच्चा ने अभी तो कर दिया पर शायद और बच्चे पूरी सिटी को क्रॉस करते करते न जाने कितना चीज फेंकेंगे, कितनी गंदगी फेंकेंगे। एटलीस्ट आई स्टॉप दैट। तो मेरे को अपने ऊपर खुशी हुई कि आई एम रिस्पॉन्सिबल रेसिडेंट ऑफ माई सिटी, कि मैंने इस बस वाले को, और बस वालों ने बहुत ताली बजा के मेरी बात का समर्थन किया। और हम इंदौर क्या, आप किसी भी सिटी में जहां भी हम जाएंगे हम बस के बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे, हम बस के अंदर ही कचरा रखेंगे। और बस वाले को मैंने बोला कि यू शुड मेंटेन डस्टबिन इन योर बस। तो इस तरह से हम जब तक अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे हम दुनिया को मैनेज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, why can't we get the energy which we get just before a deadline? ये एक बड़ा प्यारा कोट मेरे को आज पढ़ने मिला कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आज मुझे लेक्चर देना है यहाँ पर, मेरी जोसेफ जी से बात करीब 10-12 दिन पहले हो गई, पर ऐसा क्यों होता है कि 10-12 दिन में से 10 दिन तक तो हमको होश ही नहीं आती, और आखिरी के 2 दिन और आखिरी के घंटे में हम प्रिपेयर करते हैं। ये एनर्जी हमारे में कहां से आ जाती है? ये एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है और ये बड़ा एक खोज करने वाली चीज है कि हम 10 दिन तो निकाल देते हैं। एनीवे, ये मेरे साथ नहीं होता है। मैं आई एम रियली आई एम टेलिंग यू, जहां तक मैं कोशिश करता हूं, जिस दिन मेरी जोसेफ जी से बात हुई उसी दिन मैंने टॉपिक कंफर्म किया और मैंने वो टॉपिक 3 दिन में रेडी कर लिया, बिकॉज दिस इज द न्यू टॉपिक। मैंने इस पे कोई वर्क पहले से नहीं किया था, पूरा टॉपिक मैंने नया बनाया और 3 दिन में मैंने इसको कंफर्म कर लिया। और उसके बाद 2 दिन मैंने इसकी प्रैक्टिस की और फिर 2 दिन, कल और आज, मैंने इसकी थॉरो प्रैक्टिस की। पर मैंने अपनी चीज 3 दिन पहले बना ली थी, मतलब उस दिन बना ली थी जिस दिन मेरी बात हुई। तो हम इस चीज से जरूर देखें कि वाई जो एनर्जी हमारे में 2 दिन पहले आती है, हम लोग कहते हैं ना बातों बातों में कि अरे यार सब हो जाएगा, जब टाइम आएगा तब सब हो जाएगा। ठीक है, मानता हूं मैं, टाइम आएगा तो सब हो जाता है, मगर टाइम कभी कभी पूछ के नहीं आता। टाइम कभी कभी आपके साथ एडवर्स आ जाता है। हो सकता है कि मैंने आपको यहाँ टाइम दिया हुआ है, मुझे कोई अर्जेंट काम आ जाए, हो सकता है मैं बीमार हो जाऊं, हो सकता है कि मेरे साथ और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊं। तो आज मैं जितने कॉन्फिडेंस से आपके साथ बात कर रहा हूं, इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं करता। आपने मुझे दूसरी बार बुलाया है, मेरा परफॉर्मेंस देख के बुलाया है। मैं तो आपको जानता भी नहीं, मेरी तो आप लोगों से तब बात हुई थी और आज सेकंड बार आपसे भेंट हुई है। पर मुझे इस चीज की खुशी है कि मैंने उस दिन कुछ अच्छा बोला था, तभी आपने मुझे बुलाया। तो ये इसके लिए चाहिए है परसिस्टेंसी। परसिस्टेंट होकर यदि आप किसी चीज को वेल एडवांस कर लेते हैं, डेडलाइन से पहले कर लेते हैं, सो यू विल नेवर मिस द बस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बी असर्टिव, एडजस्ट योर माइंडसेट। एडजस्ट योर माइंडसेट। आपको अपना दिमाग को सेट करना पड़ेगा। यदि मेरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं आप बोल नहीं सकता हूं, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं। मुझे अपना माइंडसेट एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉट ओनली प्लान, टेक एक्शन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये आप लोग कभी मेरे को फिर कभी चांस दोगे तो मैं आपको इस पर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगा। नॉट ओनली प्लान, टेक एक्शन। आप देखना, हम में से 99% पीपल्स आर ओनली प्लानिंग, नेवर एग्जीक्यूटिंग। इसको बोलते हैं शेट चिल्ली की प्लानिंग। वी ऑलवेज प्लान, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वी आर ऑलवेज प्लानिंग एंड नेवर एग्जीक्यूटिंग। नेवर एवर। जितना परसेंटेज से प्लानिंग होती है उस परसेंटेज से बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं, बट जिस परसेंटेज से हम प्लानिंग करते हैं उस परसेंटेज से हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। टाइम इज मनी, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम, मैं टाइम के लिए बहुत बहुत केयरफुल हूं। टाइम इज मनी, नेवर एवर वेस्ट द टाइम। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। आज का काम कल पे टालना, कल का काम परसों पे टालना, नेवर। इसके लिए बहुत प्यारा कोटेशन है, मैं भी आपके सामने बताऊंगा। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। किसी भी चीज को टालने की बीमारी से दूर हो जाए। अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मैंने पहले आपको बोला, आपको अपने आप को समझना होगा। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, देन टू अंडरस्टैंड अदर्स।
हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम दूसरे को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को समझते नहीं है। आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होगा कि मैं क्या हूं, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मैं कितना काम कर सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ये सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। और फॉर्म अ हैबिट। जब तक आप हैबिट फॉर्म नहीं करेंगे किसी भी चीज, तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। हैबिट, टाइम पे चलने की हैबिट, सुबह उठने की हैबिट, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करने की हैबिट, टाइम पर काम चालू करने की हैबिट, बड़ों की रिस्पेक्ट करने की हैबिट, दीज ऑल आर हैबिट्स। जब तक आप हैबिट फॉर्म नहीं करेंगे, आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप मान लीजिए किसी और के साथ आप बैठे हैं और एक डेडलाइन आपको फिक्स करनी है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन। अब अपन इस बात पे आ रहे हैं कि आप डेडलाइन फिक्स कर रहे हैं कलेक्टिवली, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन जो उस डेडलाइन को पूरा कर सकता है। यदि आपने उस व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति सेंसिबल है, यदि वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, और यदि उसको आपने डेडलाइन दे दी, तो वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। यदि वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, तो ही इज गोइंग टू डाउन यू ऑल्सो एंड ही इज गोइंग टू अंडर एस्टिमेट हिम ऑल्सो। Go for 515 report. This is a very vast topic. 515 report. 515 report क्या है? 5 मिनट में रिपोर्ट बनाओ और 15 मिनट में उसको इलेबोरेट करके बताओ। ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, ये मैं आपसे फिर कभी इसको पूरा बात करूंगा। गिविंग टाइट, और इसमें ये भी होता है कि जब आप किसी को बहुत टाइट गाइडलाइन दे देते हैं और वो इसको कोप अप नहीं कर पाता है, तो वो उसकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो भी खत्म हो जाती है। तो यू हैव टू सी कि आप कौन सी डेडलाइन किसको दे रहे हैं। अब आपने यदि मान लीजिए मुझे सुबह फोन किया होता कि आज आपको शाम को बोलना है, तो हो सकता है मैं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपके सामने नहीं दे पाता, और या देता भी तो आपने उन सब्जेक्ट्स का देता जिनके मैं ऑलरेडी पहले प्रेजेंटेशन दे चुका हूं। बट यू हैड गिवन मी अ टाइम, यू हैड गिवन मी अ comfortable time that I should prepare my presentation in that time. So that ये आपके ऊपर है कि आपको यदि अपना गोल अचीव करना है, so you have to assess the situation of that particular person. You have to assess all the resources and then fix the deadline. How to manage time to improve the importance of deadline. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, how to manage time, क्योंकि देखिए डेडलाइन, गोल और डेडलाइन के बीच में मेन टाइम है। अब हाउ टू मैनेज टाइम टू इंप्रूव द इंपॉर्टेंस ऑफ डेडलाइन, हम आज की बात करते हैं। एक बड़ा प्यारा कोटेशन मैं आपके सामने और पढ़ना चाहता हूं। अ प्रोफेशनल हु डजंट डिलीवर एज कमिटेड इज नॉट जस्ट लेजी, ही इज अ लायर। अमित कलंतरी हमारे देश के हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि जो व्यक्ति अपनी डेडलाइन को मेंटेन नहीं करता है, अपनी डेडलाइन को ऑनर नहीं करता है, तो वो लेजी नहीं है, वो झूठा है। कितनी बड़ी बात बोली। झूठा होना मतलब डायरेक्ट उन्होंने उसके पर्सनैलिटी पे वार किया कि वो झूठा है। वी डोंट वांट टू बी अ लायर, वी वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब इसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मैंने इसको 55% वेटेज दिया है। एंड हाउ टू इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि हम सुनते तो बहुत हैं, समझते बहुत हैं, और उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। मैंने आपसे क्या बताया कि हम प्लान बहुत करते हैं मगर हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। हम प्लान बहुत करते हैं, अभी हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ लेंगे, मगर उसको कैसे इंप्रूव करना है ये हमको नहीं मालूम है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू इंप्रूव, व्हाट आर द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड हाउ टू इंप्रूव दैट। यू शुड नो वेयर योर टाइम गोस, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपका टाइम कहां जाता है। उसके लिए आपको यू हैव टू प्रायोरिटाइज, प्लान, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है आपको, गोल सेटिंग। ना अपन देखते हैं व्हाट इज प्रायोरिटाइजेशन। असाइनिंग अ लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस टू डिफरेंट टास्क। कौन सी टास्क सबसे पहले है, कौन सी टास्क बाद में आप कर सकते हैं, दिस इज प्रायोरिटाइजेशन। मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि मेरे को टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम 7 o'clock तक हमको इसको पूरा करना है। तो यू शुड नो वेयर योर टाइम गोस, आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज टाइम इज द करेंसी फॉर यू। टाइम कहां जा रहा है, तो प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आज, अभी मान लीजिए आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, हो सकता है आपके पास कोई और काम हो जो कि आप शायद 7 o'clock के बाद भी कर सकते हैं, और आपको क्या लग रहा है कि यार कोई बात नहीं,
अपन काम देखते भी जाएंगे और काम भी करते जाएंगे। तो ना तो आप ये काम कर पा रहे हैं, ना आप वो काम कर पा रहे हैं। मेरी आधी बात आपको सुनाई देगी और आधा आपका मन उस काम में लगा रहेगा, तो आपका मन भरेगा नहीं। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज। यदि आपको लेक्चर से इंटरेस्ट है, यदि आपको अपना जीवन सुधारना है, यदि आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो आपको प्रायोरिटी में मेरा लेक्चर पहले रखना पड़ेगा, जो कि आज इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ने यहाँ पर अरेंज किया है। आपको ऑनर देना पड़ेगा। सेकंड काम आप बाद में कर सकते हैं। इसी तरह से यू हैव टू प्लान। अंटिल अनलेस यू प्लान, प्लानिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंस्ट्रक्टिंग योर टास्क शेड्यूल, जब तक आप प्लान नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज शायद आइंस्टीन ने बोली है कि इफ आई गेट 7 hours to cut the tree, I'll sharp my axis for 2 hours. मैं अपना 2 घंटे तक यदि अपनी एक्सेस को शार्प करूंगा ना, तो मैं ट्री काट लूंगा। पहले से प्लानिंग करूंगा, एक्सेस को शार्प करूंगा और रिसोर्सेज जुटाऊंगा। जब तक मैं प्लानिंग और उठा के मैं चालू हो जाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो यू हैव टू प्लान योरसेल्फ। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि मेरे दिमाग में स्ट्रेस होगा, यदि मेरे को कुछ और चीज याद आ रही है कि मुझे किसी की पेमेंट करनी है, मुझे किसी से मिलने जाना है, या ये चीज तो गड़बड़ है, उसने क्या बोला, किसी का फोन आ रहा है तो मेरा ध्यान वहां जा रहा है, तो मेरी डिलीवरी यहाँ पर प्रॉपर नहीं होगी। तो आई हैव टू मैनेज माय स्ट्रेस। फीलिंग ऑफ इमोशन और फिजिकल टेंशन दैट डिस्टर्ब्स यू हैज टू बी चेक्ड। यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो ओनली आप डेडलाइन को मीट कर पाएंगे। गोल सेटिंग, accomplishment of specific task is an essential part. गोल्स आपको बनाकर how to reach to your goal, जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे। आज मेरा गोल था कि मुझे यहाँ पर इतने बजे बोलना है, आपका गोल था कि आपको ठीक टाइम पे इस प्लेटफॉर्म को चालू करना है। तो देख लीजिए कि हम सब यहाँ पर उस गोल को ऑनर करते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर। एक्सप्रेशन ऑफ योर गोल्स, प्लान्स एंड नीड्स इन टाइम। ये इसको मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा। मेरे यहाँ पर दोस्त जुड़े हुए हैं, मेरे पार्टनर हैं, मेरे साथ में काम करते हैं, गौरव, वो जुड़े हुए हैं। हम लोगों को भोपाल जाना था सुबह निकल कर, और मैंने सोचा कि वो उठ गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। मैं खुद तैयार हो गया, पर यदि मैं उनको समय से पहले एक बार रिमाइंडर दे देता तो शायद वो जल्दी तैयार हो जाते और टाइम पर आ जाते। ये भी एक बहुत बड़ा कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप कोई गोल बनाते हैं और यदि आप कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन शुड बी इन टाइम। जब तक आप टाइम पे नहीं करेंगे, उस कम्युनिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। एक्शन, मैंने अभी आपसे बात की हाउ टू टेक एक्शन। तो इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। स्टार्ट अर्ली, सेट लिमिट्स, गिव yourself breaks. This is also very important. Organize your workplace. Learn your patterns of productivity. आपको किस चीज पे अच्छा लगता है प्रोडक्टिव होने में? मुझे बहुत अच्छा बोलने में अच्छा लगता है, मुझे इस तरह से बात करने में अच्छा लगता है। फोकस ऑन वन टाइम एट वन गोल, ये मैंने अभी आपको बताया। तो दिस इज द 6 एलिमेंट्स by which you can improve your time management skills. Start early. आज जैसे हमने 10 मिनट पहले चालू किया, मान लीजिए कोई ग्लिचेस होता, कोई गड़बड़ी होती, तो हम उसको फेस कर सकते थे। सेट लिमिट्स, लिमिट सेट करिए। हमने लिमिट सेट की हुई है कि हमें कितने बजे से खत्म करना है। आगे आइए, हाउ डेडलाइन एनहांसेस योर क्रिएटिविटी। अब बात यह है कि हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता डेवलप होनी चाहिए। बातें करने से कुछ नहीं होगा, बातें हैं, बातों का क्या। हमने गाना सुना ना, कसमें वादे प्यार वफा के, बातें हैं, बातों का क्या। तो डेडलाइंस आर ग्रेट डिस्कवरी टूल्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। नॉट बीटिंग आर अनकवर्स इनकम्पिटेंस एंड लैक ऑफ कमिटमेंट। डेडलाइंस आर ग्रेट डिस्कवरी टूल्स। जब आप डेडलाइंस डिसाइड करते हैं तो उसमें से नई नई चीजें निकल के आती हैं। आपको लगता है कि मैं ये काम कैसे करूंगा, ये काम मैं कितनी जल्दी कर सकता हूं। आपको नई नई उसके इंसाइट्स मिलते हैं, और उससे आपका मीटिंग्स, नॉट मीटिंग आर अनकवर्स इनकम्पिटेंसी एंड लैक ऑफ कमिटमेंट। यदि आप उसको नहीं डेडलाइन को मीट करते हैं, तो आपकी इनकम्पिटेंसी और लैक ऑफ कमिटमेंट सबके सामने उभर के आ जाता है। यदि मैं यहां डेडलाइन को ऑनर नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा,
तो मेरी इनकम्पिटेंसी एंड लैक ऑफ कमिटमेंट सबके सामने आ जाता है। डेडलाइन एंड क्रिएटिविटी। अब डेडलाइन और क्रिएटिविटी क्या है? हाउ टू स्टे क्रिएटिव अंडर प्रेशर, अवॉइड फियर ऑफ फेलियर, सिंप्लीफाई द थिंग्स, डोंट वेट फॉर आइडियल टाइम। ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। क्रिएट द राइट एनवायरमेंट, गिव योर सेल्फ इनफ टाइम। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप सबको पता है, बट रिमाइंडर इज इंपॉर्टेंट। इट चेक्स डेडलाइन फिक्स करने के साथ, इट चेक्स पोस्टपोनिंग द टास्क, इट मेक्स अस मोर क्रिएटिव, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। आज का टेक अवेज क्या है? फोकस ऑन डेडलाइन। हमेशा आप जब चालू करें कोई भी काम, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और जब काम खत्म करें तो आपके सामने टेक अवेज होना चाहिए कि आप क्या लेके जा रहे हैं टेक अवेज। फोकस ऑन डेडलाइन, डिवोट योर सेल्फ टू अकॉम्प्लिश। उस चीज को पाने के लिए आप अपने आप को झोंक दें, डिवोट कर दें। क्रिएट टू अचीव, ऐसा काम करें कि अचीवमेंट उसमें आपको हो। टेस्ट योर ब्रेन, दिमाग से सोचें कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, यदि मैं ऐसा करता हूं तो इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। चेक योर ब्रेन एंड बी स्मार्टर। ये दुनिया स्मार्ट लोगों की है। अब वो हार्ड वर्किंग वाले डेज गए, ये स्मार्ट लोगों की दुनिया है। एंड इट्स नॉट ओनली व्हाट यू से बट हाउ यू डिलीवर इट। दुनिया उसको देखती है जो काम करके दिखाता है, जो सिर्फ बातों पे विश्वास नहीं करता। गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस। हर वो गोल यदि बिना डेडलाइन के है तो वो एक गंदा सपना है, बुरा सपना है, और यदि वो डेडलाइन के साथ है तो बहुत सुंदर सपना है। तो ये आज हमने डेडलाइंस की बात की। टाइम चूंकि हो गया है 7 बजे, मैं आपको अंत में फिर वही चीज बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हमें अपने हाथों को धोना है और किस तरह से हमें अपने आप को हाइजीनिक पोजीशन में रखना है। कारण क्या है? कोरोना हैज टॉट अस दैट वी आर रियली अ पीपल who never ever understand the value of cleanliness। आज इंदौर ने करके बताया है, और हम अपनी बॉडी पे हम उसको नहीं करते हैं। हम खाना खाने बैठते हैं तो हम बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। हम नोट गिनते हैं, अपने मुंह पे लगा के उंगली लगा के नोट गिनते हैं। हम 10 लोगों से हाथ मिलाते हैं और उसी हाथ से हम अपना चेहरा पोंछ लेते हैं, चश्मा उतार के आंखें पोंछ लेते हैं और बढ़िया अपना काम कर लेते हैं। पर हमें नहीं मालूम कि इतने सारे जर्म्स हमारे इन हाथ में जाते हैं। हाथ को धोने की एक कला है। मेरे को अभी आपने याद दिलाया कि मैंने पिछली बार हैप्पी बर्थडे टू यू बोला था, आज भी वही बोलता हूं। कम से कम एक चीज आपको याद रहे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप रामायण की चौपाई बोल सकते हैं, आप यीशु मसीह का कोई संदेश बोल सकते हैं, आप कोई गाना गा सकते हैं। इन सब के पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि कम से कम 20 से 25 सेकंड आपको हाथ धोने में लगे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छी तरह से हाथ को धोकर और उसके बाद साफ कपड़े से पोंछना आपका दूसरा कर्तव्य होना चाहिए। होता क्या है, हम हाथ धो लेते हैं, जो गंदा तौलिया लटका है या जो ऐसा तौलिया लटका है जिससे 10 लोगों ने हाथ पोंछा है, हम उसी से हाथ पोंछ लेते हैं। ऑलवेज कैरी अ क्लीन हैंकी विथ यू, और टिश्यू पेपर आपके साथ हो, आप उससे हाथ पोंछे। जिंदगी में अच्छी तरह से रहें, अच्छी तरह से अपना सम्मान करें, और किसी भी तरह से अपने आप को बीमार नहीं होने दें। So thank you very much. You can send me a message at manindarchandokindor@gmail.com. If any questions are there, you can put forth me. I will be very thankful to answer those questions. मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Thank you, sir. The floor is open. Anyone can have any questions or feedback, or you want to share with Maninder sir. Sir is here, please. Yes, sir. सबसे पहले तो बताएं कि आपको अच्छा लगा कि ये बिल्कुल नया टॉपिक था। चैट बॉक्स में डालिए, लिखिए, बोलिए, अच्छा लगेगा सुनकर। यस सर, सुनील सर।
Actually, this is the right time for me to get the session, and particularly really an excellent one. Will Thank be you a very much. lot of utility to me in drawing my path to say diversified activities. Very good. Very good. Somehow, partly I was following many of these, but now I'll be very say it will be very easy for me to go ahead with my say, action plan. और मैं आपको प्रणाम करता हूँ. To ISCT as well as your honor, sir. Thank you very much. It's really a great honor to be with you. Thank you very much. Thank you very much. Any question chat box में खोलता हूँ. ये superb session. Thank you very much, Joseph जी. आपने लिखा है superb session, fruitful session. Best part of your session always that it's based on your experience. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किंजल अहिर ने लिखा है कि मेरे बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैं इस बात पे आपका बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस का मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूं जो मैं सिर्फ पढ़ के आया हूं. I always speak on my experience. Nothing, never, ever otherwise. जो मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा मैं कभी नहीं बोलूंगा. I respect you. Very nice. Everybody is looking forward and more such sessions, sir. Very nice. मैं एक चीज बताना भूल गया आपको. मैं हर दिन सुबह फेसबुक पर 11 बजे लाइव आता हूँ. आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं. कम से कम फेसबुक पर मेरे 800 वीडियोस होंगे जो कि हर दिन सुबह 11 बजे 3 मिनट के लिए मैं 3-4 मिनट 5 मिनट के लिए मैं लाइव आता हूं और अपनी बात करता हूं. एंड एवरी वेडनेसडे फोर्टनाइटली, नॉट एवरी वेडनेसडे, एवरी फोर्टनाइट वेडनेसडे मैं शाम को 6 बजे 1 घंटे के लिए किसी भी टॉपिक को लेके आता हूं. और इन दिनों मेरा टॉपिक जो चल रहा है वो है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. बहुत अति असरकारक लोगों की 7 आदतें जो कि स्टीफन कोवे ने लिखी है, उस पे मैं सेशन ले रहा हूं इन दिनों और मैं उस पे बोल रहा हूं. Yes, sir. Sir, actually, I am happy to share you that I had attended 1 week workshop at Devlali Military Center in 1995 on the book. And I recently got his book, 8 Habits. People like to change this, but they do not change. The theme of the book is change yourself, others will follow. Yes, you are right. You are right. It's really wonderful book, sir. Wonderful book. तो मैं इन दिनों इस पे बात कर रहा हूँ और हर दिन सुबह 11 बजे फेसबुक पे लाइव आता हूँ. आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं. What is excellent deadline? You were stressing this point at a particular point. Very good. What is excellent deadline? ये लक्ष्मी नारायण रेड्डी जी ने पूछा है. Very good. Excellent deadline. Excellent deadline जो होती है ना, ऐसी deadline जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं. No rush. You are comfortable. आप समझदारी से काम करते हैं. You have a sufficient time, not enough time, not less time, sufficient time, reasonable time, in which you put your heart together. आप उसको पूरे को समझते हैं, करते हैं. और सबसे बड़ी बात, जब आप उसको एंजॉय करते हैं, उस डेडलाइन को एंजॉय करते हैं. अभी आप लाइफ जी रहे हैं अपनी. जब लाइफ को आप एंजॉय करते हैं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं आप ना एंजॉय करते हैं. जब मूली खरीदते हैं, गाजर खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं तो उसको एंजॉय करते हैं. आपको लगता है कि आप उसको स्ट्रेस के रूप में लेते. अरे यार ये कितने कैसे किलो है, ये 40 रुपए किलो है, वहां तो 20 रुपए किलो मिल रहा है, तुम लोग तो लूट रहे हो सब. हम लोग कैसे काम करेंगे? डोंट डू लाइक दिस. इंसान की जिंदगी सबकी एंजॉय करने के लिए आई है. नीरज जी ने बहुत अच्छा कहा है कि वन वन उपवन फुलवा गाए, चमन चमन पुरवैया रे, सुख में गाओ जीवन दाता थैया रे. जिंदगी को जितना आप अच्छा रखेंगे उतना आप खुश रहेंगे. तो दिस इज द डेडलाइन. यस सर. आई थिंक आपका टाइम हो रहा है, अभी बंद हो जाएगा ये. Maninder, it was a wonderful session. Thank you very much, sir. Thank you very much. Can I ask that question? One sir, why not, sir? Why not? Dr. R.S. Dabas from Delhi speaking. The question is that sometimes deadlines are based on the individual personality also. Like in MBTI, there is a J personality, judging personality. There is a perceiving personality. So the perceiving person keeps on exploring to a great creativity.
great options he find, and he can change at the last moment also. While a person with judging personality, he just plans in advance, and he is not ready to change even if something better comes. So what is the impact of personality on setting deadlines? Yes, मैंने आपसे पहले ही बोला. You are very right. I said you in the beginning that first you have to work on you. You have to make yourself understand that what you are. यदि आपके अंदर habits नहीं है, if you don't have habits, you don't. Personality is what? Personality is your habits. You know, I have a okay. I am a 6 feet tall and good looking. That is okay. But my personality is judged by my people, my friends, my family because of my character. That how I am. So because of that character, because of that my whatever I am, मैं उसके हिसाब से जब काम करता हूं तो जो डेडलाइंस होती हैं वो इफेक्ट होती हैं. जब जो लोग जानते हैं कि मैं बहुत टाइम का पंक्चुअल हूं तो वो टाइम पंक्चुअलिटी करके वो आते हैं और मेरी डेडलाइन को फैसिलिटेट करते हैं अचीव करने में. और जो लोग जानते हैं कि यार चंडोक साहब ने 5 बजे का टाइम दिया है, 5:30 तक तो खुद ही नहीं आएंगे, देन हाउ आई विल अचीव डेडलाइन. तो मेरी पर्सनैलिटी डेडलाइन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. यदि मेरी पर्सनैलिटी नहीं रहेगी. और दूसरी बात जो आपने बोली, हम बातें बहुत करते हैं, काम कम करते हैं. जितना आप बात करो उतना काम करके दिखाओ, then only you can achieve the goal. I think I am able to explain it. No, it is all about the habit also. Thank you. You are an Olympic. You are an Olympic. Which one? You are in an Pardon? Olympic company. No. You are- I'm not. I'm in the CHR of companies like Hero Honda and Okay. Trident Group Ludhiana, Very nice. as well as I was CHR of Trident Group. Some of these companies. I'm the MC, National Council member of ISTD. Okay. Very good. Very good. Very pleased to meet you, everybody. Pleased to meet. So, thank you, sir. Thank you. Thank you very much, all the participants who joined us from various chapters of ISTD, as well as the other members from Lion. And special thanks to Maninder sir for this wonderful topic and completed in time, meeting the deadlines. Right. And as you know, we will be putting this video on ISTD Anand Chapters YouTube channel. So you can ask your friends to see it afterwards, maybe 2-3 days time, you will get the video link. And next Friday also we'll be having different speaker with a new topic. So we request all to join Friday forum at 6 o'clock with using the same link. Thank you very much, everyone. Thank you.